Right, hi everyone. Good evening. Good evening, Kushal. Hi, Rudraksh. Good evening, Sairam. Yeah, hi, Pratresh. Hi, Prithviraj. Hello, Yash. Hello, Sahil. Right. So, I guess आपका पिछला लेक्चर थोड़ा सा लेट छूटा था. That's all right. Sometimes it happens. All right. So, hopefully, almost. Not everyone. In fact, only 50 students are there. Around, I think 80-90 के ऊपर रहता है ना strength. ठीक है. I think आ जाएंगे students. In the meanwhile, we can quickly do a recap of what we did in the last class when we were studying about chemical bonding. So after practicing hybridization over certain atoms, molecules, ions and odd electron species, हम लोगों ने towards the end polar covalent bond का discussion किया था. And in that discussion मैंने आपको यही बताया था that if two atoms which have an electronegative difference between them are forming a covalent bond, then that covalent bond or the electron pair that is shared between the two atoms is slightly shifted towards one of them, the one which has higher electronegativity. And this introduces partial charges on the bond, and we say that it has made the covalent bond polar, right? And इस polar covalent bond के साथ associated एक property that is dipole moment, right? वो हम लोगों ने last class में discuss किया था. Now understanding that आप लोगों को last class में ये एकदम end में आया था, so यहीं से pick up करते हैं our today's discussion. And we will start with the dipole moment. I think ये वाला part ही आपको last में नहीं आया था समझ में. ठीक है. So let's begin our discussion with this term dipole moment only, right? So in the last class हम लोगों ने ये discuss किया था that let's say electronegativity of B was more than the electronegativity of A, then the partial charges are in this manner, the electron is shifted more towards one side, right? And as a result, what we have with us is a dipole, right? And इस dipole की property है which is called as dipole moment, right? And हम लोगों ने इसको कैसे discuss किया था that this dipole moment mu से represent करेंगे and इसका it's a vector quantity with the direction from the positive charge towards negative charge,
राइट। सो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसका डायरेक्शन रहेगा डायपोल मोमेंट का, राइट। एंड इसका मैग्नीट्यूड हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था किस तरीके से, that it was the charges that are generated, like the magnitude of the charge that were generated into the distance between the charges, right। तो इसका ऐसा यूनिट रहेगा कूलम एंड डिस्टेंस का यूनिट रहेगा मीटर, सो ऐसा यूनिट रहेगा कूलम मीटर। however commonly we use this unit called as debye, and इसका एक इंटर कन्वर्जन भी आपको ध्यान में रहना चाहिए, that 1 coulomb is this much, or 1 debye is this much coulomb centimeter, 3.33 into 10 raised to the power of minus 30, or you can say 10 raised to the power of minus 18 ESU, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर नोटिस करना, डायपोल मोमेंट राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग एज अ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉन्ड। अभी थोड़ी देर में हम लोग यश मॉलिक्यूल पर आएंगे, वेट करो। हाँ पृथ्वीराज, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हुए हैं टुवर्ड्स द एटम, उसकी वजह से पार्शियल चार्ज आ रहा है, ठीक है। इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन दीज टू एटम्स इज नॉट देयर, देन ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे मिडवे बिटवीन ए एंड बी, एंड देयर विल बी अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नाउ हाँ, नहीं शेप में नहीं बोलते हम लोग, इलेक्ट्रॉन क्लाउड में, लाइक जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लाइक अगर ये सिमेट्रिकल रहता तो इट वुड हैव बीन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द atoms, but because of the electronegative difference you will find that the electron cloud would now be skewed more towards B, ठीक है। हाँ, EAU नहीं, ESU है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। ऑलराइट, नाउ कमिंग बैक, यहाँ पर जैसा हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, दैट ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देयर इज अ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर दैट इज डेवलप्ड। नाउ एक फॉर्मूला आप लोगों ने पहले सीखा था इन द जूनियर इन द प्रीवियस चैप्टर ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, which was percentage ionic character is equal to you can, what was the formula, 16 xa minus xb, 16 delta En plus 3.5 En square, right? Now that formula was an empirical formula based on the electronegativity difference between the atoms, and this is another formula, right? Both the formulas are correlated, ऐसा नहीं है कि ये formula और वो formula interdependent नहीं है, like this formula is in fact the more experimental oriented formula which helps you in calculating the percentage ionic character. इस formula से that previous formula came in, जहां पर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के टर्म्स में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर डिस्क्राइब करते हैं। The more fundamental or the more simplistic formula of percentage ionic character is this formula, यहाँ पे आप नोटिस करना, mu experimental upon mu theoretical into 100%। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ पर आप नोटिस करना, अभी हम लोग फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एक डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। दैट विल बी आवर स्कोप ऑफ डिस्कशन राइट नाउ, दैट एक बॉन्ड के बारे में बात कर लो या मॉलिक्यूल के बारे में बात कर लो, वन एंड द सेम थिंग ओनली। सो यहाँ पर we are talking about diatomic molecule only which have a covalent bond between them. Now because of electron sharing between these two atoms, right, what we find is that because of electronegativity difference the electron pair is shifted more towards one of the atoms, which results in generation of these partial charges, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिस करना, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये पार्शियल चार्जेस की वजह से एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट आता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज पार्शियल चार्जेस, ठीक है। बिकॉज ऑफ दीज पार्शियल चार्जेस दिस एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट कम्स इन, जिसकी वजह से आयोनिक कैरेक्टर आएगा। अब इसको परसेंटेज में हम लोग कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, तो यहाँ पे नोटिस करना, सो व्हाट वी डू इज वी अज्यूम
that instead of partial charges we assume complete transfer of electron. ठीक है, this is assumed only. and उससे हम लोग फिर theoretical dipole moment निकालते हैं. ठीक है, यहाँ पर आप लोग नोटिस करना, हम लोग ये assume कर लेंगे that ये H प्लस, ये H प्लस एंड Cl माइनस बन गया है. ठीक है, इट इज लाइक एन आयनिक केस जहां पर एक पूरे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया है. एंड इसका फिर हम लोग डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, कंप्लीट चार्ज का. कैसे? थियोरेटिकली. एंड वी कंपेयर इट टू व्हाट? ये पार्शियल चार्जेस की वजह से आए हुए डायपोल मोमेंट को. एंड दोनों का रेशियो इज व्हाट गिव्स अस द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर. सो यहां पर आप नोटिस करना, here is an example to try and help you understand that concept. Now यहां पर आप नोटिस करो, we measure experimental dipole moment of HCl and it comes out to be 1.01 dBi. ठीक है, now this experimental dipole moment of HCl is something that is calculated via certain experiments. वो आपके अंडरस्टैंडिंग का पार्ट नहीं है अभी. लाइक व्हाट दे डू इज दे हैव अ कैपेसिटर एंड कैपेसिटर इज फिल्ड विद दैट मटेरियल जिसका डायपोल मोमेंट हमको कैलकुलेट करना होता है. एंड समहाउ अभी के लिए आप मान के चलो कि ठीक है, देयर आर एक्सपेरिमेंटल वेज इन विच दिस म्यू, दिस डायपोल मोमेंट इज कैलकुलेटेड. And again experimentally only, using the experiments like NMR spectroscopy, we can understand HCl का bond length. Like we can observe HCl का molecule and उसमें we can notice that H और Cl के nuclei के बीच में कितना distance है. So these two data points ये हम experimentally निकाल लेते हैं. Based on these two data points, अगर आपसे बोला जा रहा है that you determine the percentage ionic character in HCl bond and the magnitude of the partial charges that are generated on the hydrogen and the chlorine atoms, तो हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे. सो यहाँ पर आप नोटिस करना, फॉर थियोरेटिकल डायपोल मोमेंट, लाइक एक्सपेरिमेंटल तो हमको पता ही है, राइट. फॉर थियोरेटिकल डायपोल मोमेंट यहाँ पे आप नोटिस करना, व्हाट वी अज्यूम इज दैट हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच में कंप्लीट शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है, राइट. तो इस पर कितना चार्ज आ गया है? प्लस ई, एंड इस पर माइनस ई, राइट. दैट इज द चार्ज दैट हैज कम, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसे प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, राइट. एंड यहाँ पर माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, राइट. ये चार्ज आ गया इनके ऊपर. दिस इज फॉर थियोरेटिकल डायपोल मोमेंट. ठीक है, तो अभी जो म्यू थियोरेटिकल है, राइट, म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू डी, राइट. एंड आपको ये बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है, कितना है ये? 1.275 एंगस्ट्रॉम, राइट. सो आप ये निकाल लेते हो. आप कैसे कंप्यूट करोगे, राइट. 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज है एंड 1.275 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर है SI यूनिट्स में. तो ये कूलम मीटर में आपका आंसर आ जाएगा, विच यू सब्स्टिट्यूट ओवर हियर in the denominator of the formula of percentage ionic character. तो ऊपर 1.01 डिवाइड था जिसको आपने SI यूनिट्स में कन्वर्ट कर लिया, एंड नीचे भी चार्ज इनटू डिस्टेंस जो SI यूनिट्स में था उसको डाल दिया, एंड उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कंप्यूट कर लिया, which comes out to be around 17%. ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि HCl मॉलिक्यूल या HCl जो बॉन्ड है, राइट, उसका डायपोल मोमेंट कितना है, राइट. नाउ अगर आपको अब पूछा जाए कि हाउ मच पार्शियल चार्ज वुड हैव बीन जनरेटेड ऑन द हाइड्रोजन एंड द क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, द आंसर इज इट वुड हैव बीन 17% ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट. बिकॉज ऑफ द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर यू कैन टेक दैट गेस कि कितना
चार्ज जनरेट हुआ होगा. लाइक 100% would mean a complete electron का shift. So 17% ionic character मतलब 17% will be the partial charge that will be generated. So इस तरीके से ये एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करा जाता है. ठीक है. एंड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यहाँ पर आई हैव टेकन दिस एग्जांपल ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. राइट, एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है उनके बीच में. ठीक है. हाँ, ये यहाँ पर न्यूमरेटर में आप नोटिस करना, ये क्यों आया? बिकॉज ऑफ द कन्वर्जन ऑफ Debye. 1 Debye is equal to 3.33 into 10 raised to the power of -30 कूलम मीटर. ऐसा यूनिट्स में कन्वर्जन के लिए. राइट, ये क्योंकि आपको डेटा जो था वो Debye में दिया हुआ था एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट का, तो ये यूनिट्स का इंटर कन्वर्जन था ताकि ऊपर नीचे कंसिस्टेंट यूनिट्स में हम लोग वर्क करें. नाउ नेक्स्ट we come to this understanding of polar covalent molecules. ठीक है. तो इसमें आप नोटिस करना, इसके पिछले वाला जो हेडिंग था उसमें हम लोगों ने पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स पढ़ा था, एंड दिस टाइम वी आर टॉकिंग नाउ अबाउट पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स. व्हाट डज दिस मीन? इसको समझने की कोशिश करना. दैट इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, राइट, देयर कैन बी मेनी पोलर as well as non-polar bonds. Now what we say is that the net dipole moment of a molecule is the vector sum of these individual dipole moments in the molecule. So हम लोगों ने यहाँ पे नोटिस करा इसके पहले कि एक बॉन्ड पोलर हो सकता है या फिर नॉन पोलर हो सकता है. एंड नाउ व्हाट वी सी और व्हाट वी से इज दैट अगर हम मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, डायटोमिक की जगह अगर ट्राइएटोमिक है, टेट्राएटोमिक है, पॉलीएटोमिक है, राइट, उसके अंदर बहुत सारे बॉन्ड्स हैं, तो उनका वेक्टर सम, उनके डाइपोल मोमेंट का वेक्टर सम इज व्हाट विल बी called as a dipole moment of the molecule. Now there can be two possibilities. If the dipole moment, because it's a vector sum, cancellation is possible. If that cancels out and the net dipole moment is 0, then we call that molecule as a non-polar molecule. And if the dipole moments don't cancel out, the net dipole moment is not 0, then we will call that molecule as polar molecule. Okay, so this is something what we had seen in gaseous state chapter when I had talked about certain gas molecules being polar and certain gas molecules being non-polar. Now एक एक करके एग्जांपल्स के थ्रू चलेंगे तो आपको थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा. ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना. फॉर एग्जांपल, if I present to you BF3 molecule, right? So boron और फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, right? And because of that electronegativity difference, there is a dipole moment that is generated, right? Each BF bond has its own dipole moment represented by this mu, and the direction will be from positive towards negative, right? तो यहाँ पर dipole moment इसका ये left to right होगा, यहाँ पर ये bottom से ऐसे 120 डिग्री की तरफ होगा और यहाँ पर भी नीचे 120 डिग्री की तरफ होगा. Now because you have now studied vectors, so you can understand कि 3 equal vectors 120 degree from each other, the net dipole moment will be 0, like cancel out हो जाएंगे आपस में. ठीक है. So इसको अब हम क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल. ठीक है. दिस इज द केस ऑफ अ मॉलिक्यूल जहां पर उसके इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स ऑफ द बॉन्ड्स दे आर कैंसिलिंग आउट ईच अदर. Okay, you may have other examples also. So for example, let's say you talk about neon as an atom, just an individual atom, right? किसी से bonded नहीं है. अब bonded नहीं है, however यहाँ पर opposite charges तो हैं, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? तो यहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट जनरेट हो रहा है. बट अब अगेन नोटिस करना, जब हम इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, हम लोग ऑर्बिटल्स के बारे में बात करते हैं, तो कैन यू सी दैट ऑल द ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिकल अराउंड द न्यूक्लियस? टॉक अबाउट s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल, एनी ऑर्बिटल you talk about, right?
it has got symmetrical distribution of electron around the nucleus. And as a result, एक individual atom को भी हम लोग non-polar ही बोलेंगे. ठीक है, so electron distribution around the nucleus is symmetrical, and this is what makes neon a non-polar molecule. Oh, sorry, a non-polar atom. ठीक है. Now let's observe the case of ammonia. ठीक है, यहां पर आप नोटिस करो अमोनिया के केस में कैसा है. अमोनिया का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है. It's a pyramidal molecule, right? Let me redraw the structure for you. So nitrogen, hydrogen, 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 right? ये एक बाहर जा रहा होगा और एक अंदर जा रहा होगा, right? And you have a lone pair. ठीक है. अब यहां पर आप नोटिस करना the bonds have their dipole moment, right? ये नाइट्रोजन क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, और ये हाइड्रोजन क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव, राइट. तो इन बॉन्ड पेयर का डाइपोल मोमेंट रहेगा से सम μ1, ठीक है, इन दिस मैनर, लाइक द डायरेक्शन विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव, राइट. एंड इवन द लोन पेयर will have a dipole moment. Why? Because lone pair is like negative charge and nucleus is positively charged, right? So there is a dipole moment here also, and iska direction kya hoga, again from positive to negative. What is the positive? That is the nucleus, and what is the negative? Towards this lone pair. This is directed in this direction. So iska dipole moment hoga kuch aur value hoga, like it will not be μ1, it will be some other value, say μ2, right? And now you can notice that if I try to take a vector sum, like ये μ1, μ2, like इन तीन जो ट्राइपॉड पे प्रेजेंट हाइड्रोजन है, इनका वेक्टर सम जो होगा वो नॉन जीरो ही होगा. They will kind of add up in the upward direction and it will add up to μ2. So effectively I can in a sure manner say that यहाँ पर dipole moment cancel out नहीं हो रहा है, right? So this leads to a case where there is a particular non-zero value of dipole moment, and this will be called as a polar molecule. Okay, so with NH3 there is a dipole moment that is associated. So यहाँ पर एक जो key learning आपके साथ में आई है, that यहाँ पर there is a significant dipole moment associated with lone pair also, which is directed away from the nucleus. ठीक है, ये आपको एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, राइट. लोन पेयर का यहाँ पर क्यों है डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, बिकॉज ये जो लोन पेयर है ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है. यू रिमेंबर हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका शेप कुछ इस तरीके से होता है, बड़ा लो छोटा लो, राइट. तो इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी एक तरफ स्क्यूड है, लाइक इन दिस रीजन, right? It is less likely to be found in this region. So it is not a symmetrical distribution how it was in case of pure atomic orbitals, right? That's why lone pair के साथ में dipole moment associated रहेगा, ठीक है. And this is something which then is adding up to the dipole moment coming from the hydrogen atoms, which makes ammonia as an overall a polar molecule, ठीक है. हाँ, अब एक एक करके आप लोगों के डाउट्स लेते हैं. ऑलराइट, सो सबसे पहले सुमित का, हाँ बताओ सुमित, क्या नहीं समझ में आया? हाँ, नियॉन एटम में क्या नहीं समझ में आया? You can raise your hand, I'll unmute you, then we can discuss. हाँ बोलो. हाँ मतलब वो सिमेट्रिकल कैसा, वो समझ नहीं आया सर. आपको ऑर्बिटल्स के शेप याद है? यस सर. तो एस ऑर्बिटल कैसा होता है? कौन सा ऑर्बिटल? एस ऑर्बिटल. So spherical. Is it symmetrical around the nucleus? Yes sir. ठीक है.
आपको p ऑर्बिटल्स का शेप याद है? Yes, sir. कैसा होता है? So dumbbell. Dumbbell. Like, so for example, say px orbital, is it symmetrically distributed around the nucleus, like towards plus x-axis and minus x-axis, Yes, yes. right? Then can you say that the electron distribution, like the probability of finding the electron on either side of the nucleus, is symmetrical, Yes, sir. right? So यहाँ पर what we are seeing is that around the nucleus of an atom, individual atom, if the electrons are present in these orbitals, which are distributed around the nucleus in a symmetrical manner only. Even Okay. d orbital, right? So it has got this distribution around the nucleus which is symmetrical only, right? जितना एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांस है, उसके ही इक्वल एंड ऑपोजिट दूसरे डायरेक्शन में भी मिलने का चांस है. Okay. So हम लोग मतलब इंडिविजुअली देख रहे हैं कि वो हाँ, सिमेट्रिकल है कि नहीं. जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं यहाँ पर इन द नियॉन एटम, डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस सिमेट्रिकल है. तो जो भी डायपोल मोमेंट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जिस भी इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का, वो सब कैंसिल आउट हो जाएगा. Okay, sir. Got it. Yes. Thank you. ठीक है. हाँ, बोलो हर्ष. सही ये NH3 में लोन पेयर में डायपोल मोमेंट अपवर्ड क्यों हो रहा है वो समझा नहीं मैं. हाँ, राइट. डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या रहता है? सर पॉजिटिव टू नेगेटिव. पॉजिटिव टू नेगेटिव. अब लोन पेयर में नेगेटिव क्या है? इलेक्ट्रॉन्स. और पॉजिटिव क्या है? द न्यूक्लियस. यस. तो ये नाइट्रोजन हमारा न्यूक्लियस है और ये उसका लोन पेयर है. इसका पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है. तो यस यस. ठीक है. यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर था, जो नाइट्रोजन है उस पे तो पार्ट्स. हाँ हाँ हाँ, इसलिए मैंने आपको बॉन्ड पेयर लोन पेयर दो अलग टर्म्स यूज करके Yes, sir. बता रहा हूँ. यहाँ पे आप बॉन्ड पेयर पे नोटिस करोगे. बॉन्ड पेयर पे कैसा है? बॉन्ड पेयर पे दोनों जगह ही न्यूक्लियस है. इधर भी हाइड्रोजन का भी न्यूक्लियस है और इस तरफ नाइट्रोजन का भी न्यूक्लियस है, राइट? बट ये जो बॉन्ड पेयर है, राइट, ये शिफ्टेड है टुवर्ड्स वन ऑफ द एटम, इन दिस केस नाइट्रोजन, राइट? तो इस बॉन्ड पेयर के लिए हम लोग अगर नोटिस कर रहे हैं, right, so इस bond pair के लिए what we are seeing is that the electron density is shifted more towards nitrogen and as a result the dipole moment is towards nitrogen, from hydrogen towards nitrogen. ये bond pair के लिए बात हो गया. lone pair के लिए कैसा है? lone pair के लिए it is present in a hybrid orbital again, right? एंड इसमें आप नोटिस करोगे हाइब्रिड ऑर्बिटल का मैंने आपको शेप बताया था, राइट? तो कैसा रहेगा? नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर के मिलने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी एज कंपेयर टू लोन पेयर के एज नाइट्रोजन के नीचे, क्योंकि इस तरीके से इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप रहता है. तो यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे. एंड अब इसके लिए मैं नोटिस करूंगा तो न्यूक्लियस विल बी द लाइक पॉजिटिव एंड and the lone pair would be the negative end. So direction of dipole moment क्या हो गया? Away from the nucleus. ठीक है. All right. हाँ, नहीं कोई पोलर एटम नहीं होगा ना हर्ष? हर्ष क्या बोल रहा हूँ? यश. Until and unless like this atom is influenced by something that distorts its electron cloud, the electron cloud will be symmetrical only. So an atom would be non-polar in nature. ठीक है. हाँ, even ions are non-polar also, right? So if I talk about Na plus ion, right? तो इसमें कैसा है? यहाँ पे आप नोटिस करना, what do we say that ये जो
न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे, राइट, दे विल हैव अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट है, ठीक है, बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस विल बी अगेन सिमेट्रिकल, which will again make as an individual atom or ion that species to be non-polar in nature, ठीक है, हाँ, that as well, ठीक है। अब मैं थोड़े बहुत एग्जांपल्स और कराता हूँ आपको, धीरे धीरे लाइक एग्जांपल्स के थ्रू और क्लियर होता जाएगा कॉन्सेप्ट, आप एक एक करके समझते जाओ। सो लेट्स से CH4 मॉलिक्यूल, ठीक है, CH4 मॉलिक्यूल के साथ में आपको समझाया जा रहा है एंड आपको फाइंड करना है कि ये पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले CH4 का लोएस्ट स्ट्रक्चर बनाओगे, उससे फिर आप जज करोगे कि CH4 का शेप कैसा होगा। एंड नाउ बिकॉज इट्स अ वेरी कॉमन एग्जांपल, यू नो दैट इट इज अ टेट्राहेड्रल शेप, राइट, एंड इस टेट्राहेड्रल शेप में, ठीक है, what you know is that this is again something which has all positions identical and it has got a symmetrical nature, right? If you remember, ये टेट्राहेड्रल का एक विजुअलाइजेशन मैंने आपको पहले बताया था क्यूब के पर्सपेक्टिव से, राइट, किस तरीके से था यहाँ पर आप नोटिस करना। सो हम लोगों ने ऐसे क्यूब में टेट्राहेड्रल को प्लॉट करने के लिए देखा था, right? So carbon is at the center, right? And where are the hydrogen atoms present? Right, carbon is right at the center. Hydrogen atoms are present at alternating corners, right? एक यहाँ पर present है, तो फिर इसके adjacent नहीं होगा, यहाँ पर present होगा, फिर इन दोनों के नीचे नहीं होगा, एक यहाँ पे present होगा, एक यहाँ पे present होगा, right? अब इनके लिए हम लोगों ने नोटिस किया था that if I connect these blue dots to the red dot, if I connect the hydrogen to the carbon atom, this is what the structure of CH4 would be, right? This is what the structure of CH4 would be. And अब इसमें आप notice करना, ठीक है, इसमें I will not go and try to answer this mathematically, ठीक है, but इसको अगर हम लोग like again विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे, तो आप यहाँ पे इमेजिन करना, ये जो 3 हाइड्रोजन रहेंगे ये ट्राइपॉड की तरह प्रेजेंट रहेंगे, राइट, एंड इन ट्राइपॉड का राइट जो डाइपोल मोमेंट रहेगा, ठीक है, वो कैसा रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, इसका इसका एंड इसका, ठीक है, थोड़ा सा और बेटर बना सकते हैं, ठीक है, इस ट्राइपॉड का जो डाइपोल मोमेंट रहेगा इन तीनों का वेक्टर से हम लेंगे तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, एंड दैट will be equal and opposite to the one that is created by the 4th hydrogen atom which is coming from top to down, ठीक है, यहाँ पर जो 4th वाला रहेगा जो ऊपर से नीचे आ रहा है, ये इन तीनों का जो नेट वेक्टर है उसको कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। नाउ हाँ, हम लोग और कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज पे आएंगे एक एक करके, राइट, बट सबसे पहले यहाँ पर, हाँ, इसको आप मैथमेटिकली निकाल सकते हो, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, अगर आपकी इच्छा है, राइट, तो आप मान लो इसको 0,0,0, ठीक है, कार्बन को, राइट, एंड देन यू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज ब्लू डॉट्स, ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस मानने के बाद में आप इन कोऑर्डिनेट्स
जो ब्लू डॉट है उनको निकाल लो, एंड उसके बाद यू कैन देन आई कैप जे कैप के कैप लगा के आप चारों वेक्टर्स आपको मिल जाएंगे, राइट। और उन चारों वेक्टर्स का आप एडिशन करके देखना, व्हाट इज इट दैट यू आर गेटिंग। आई कैप का अलग से एडिशन करके देखना, जे कैप का अलग से एडिशन करके देखना, के कैप का अलग से एडिशन करके देखना, एंड यू विल फाइंड द आंसर टू बी 0। ठीक है, मैं वो मैथमेटिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, इट इज फ्यूटाइल फॉर मी। For you, if you want to do, it is better that you spend your time and energy into it and understand. ठीक है, हाँ। And of course, these results are all experimentally validated also. So methane is a non-polar molecule which is experimentally also validated. हाँ, बोलो साहिल। नहीं, तुम्हारी आवाज बहुत क्रैक हो गई, दोबारा बोलो। Sir, हाँ sir, now it's clear. हाँ So in BF3, as you said that vector sum is 0. हाँ। Sir, नियॉन में कैसे होगा फिर? Means इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड पर वेक्टर सम उसमें इंक्लूड नहीं कर देगा? नहीं नहीं, वेक्टर सम लिया जाएगा ना, बट अब इसमें वेक्टर सम लेना will be even more cumbersome. So that is what I am now talking about, that for every position where electron is likely to be found, okay, there is another position where it is with the same probability likely to be found, and if you do the vector sum of those positions, it will come out to be 0. If the electron is likely to be found here, then it is likely to be found here as well, with the same probability. So sir, you are going position wise, not means all over. हाँ नहीं, मतलब ये मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ। If you do it for all the positions, again your answer is going to come out to be 0. 0. Okay, sir. And sir, can you scroll up little bit? यहाँ पर Sir, down. अच्छा, Yes, sir. In CH3, CH4. हाँ हाँ सर नीचे के जो 3 हाइड्रोजन्स है उनका वेक्टर सम 0 हो सकता है ना सर? ट्रायंगल्स बनेंगे उसमें, बट ऊपर वाले हाइड्रोजन है उसका 0 क्यों? वो नहीं अकेला। नहीं, ये ट्रायंगल नहीं बन रहा बाबा, ये 3D है। दैट्स व्हाट वी अंडरस्टूड ना, ये 3D है। ये बाहर की तरफ आ रहा है, ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये ट्राइपॉड है, राइट। तो ट्राइपॉड का 0 कैसे होगा? ओके सर, मीन्स अभी चारों मीन्स एक साथ बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे तो 0 हो जाएगा। हाँ, स्क्वायर नहीं बन रहा है ये। अरे बाबा, तुम टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री भूल गए क्या? तुम तो ऐसे बात करो जैसे फिजिक्स में तुमने वेक्टर्स पढ़ा ही नहीं हो। पढ़ा है तो फिर ऐसे कैसे सवाल पूछ रहे हो? यहाँ पर अगर एक ट्राइपॉड प्रेजेंट है, राइट, अब उसमें अगर आप वेक्टर सम लेने जा रहे हो, राइट, तो ये वाला और ये वाला, इनका तीन का कैंसिलेशन नहीं होगा ना, दे आर टुगेदर गोइंग टू कम अप विद अ वेक्टर, एंड वो वेक्टर का डायरेक्शन कैसा होगा? दैट वेक्टर नेट डायरेक्शन वुड बी इन दिस अपवर्ड मैनर। मान लो ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, राइट। तो ये जो वेक्टर्स बनेंगे, राइट, इनके x और y कंपोनेंट आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे, बट z कंपोनेंट फिर भी रहेगा। यस सर। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर नोटिस करना कैसे कैसे डाउट पूछ रहे हो यार तुम पृथ्वीराज। दे आर एक्टिंग ऑन द सेम पॉइंट, सो द सम शुड बी 0। मतलब तुम वेक्टर्स के टेस्ट वगैरह पास कैसे कर गए? If there are two vectors that are pointing to the same direction, as in to the same point, then their sum is 0. क्यों नाक कटा रहे हो अपने फिजिक्स के टीचर की? बोलने के पहले एक बार थोड़ा सा
लाइक 10 सेकंड तो सोच लो। हाँ, ये प्लेनर वेक्टर्स ही हैं। आर ये स्क्रीन की प्लेन में ये दो वेक्टर्स, इनका वेक्टर सम 0 है इफ दे आर पॉइंटिंग टू द सेम पॉइंट। तो फिर मतलब आई एम रियली सॉरी इफ यू आर हैविंग सच काइंड ऑफ डाउट्स। मतलब अभी आगे तो आप लोग फिर रोने लग जाओगे, बिकॉज आगे के जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा उसमें तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको वेक्टर्स का सम करना आता है। इफ दिस इज द काइंड ऑफ नॉलेज बेस दैट यू हैव, देन आई एम सॉरी टू से आपको वेक्टर्स दोबारा पढ़ना चाहिए जाके। कमिंग बैक, CH3Cl के बारे में आप नोटिस करना। CH3Cl में कैसा रहेगा, अगेन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी, राइट। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, उसमें कोई भी 3 पोजीशंस पे हाइड्रोजन लगाओगे और एक पोजीशन पे क्लोरीन लगाओगे, राइट। हाउएवर जो कार्बन हाइड्रोजन का डायपोल मोमेंट होगा और जो कार्बन क्लोरीन का डायपोल मोमेंट होगा वो अलग अलग होगा, बिकॉज पार्शियल चार्जेस अलग होंगे एंड जो बॉन्ड लेंथ है, जो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस है वो भी अलग अलग होगा। सो एक को मैं μ1 बोल देता हूँ, एक को μ2 बोल देता हूँ। एंड देन अगेन इफ वी टॉक अबाउट द वेक्टर सम, दिस इज हाईली अनलाइकली, ठीक है, दैट यहाँ पर द वेक्टर सम बिकम्स 0। μ1 का वेक्टर सम μ2 के बराबर हो जाए, इट इज हाईली अनलाइकली एंड दैट इज व्हाट वी फाइंड आउट। हाँ, इनफैक्ट यहाँ पर इसने ये गड़बड़ बना रखा है, इसमें जो डायरेक्शन रहेगा μ2 का वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रहेगा ना, तो इसमें कार्बन क्लोरीन में कार्बन पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन में हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव था, राइट। तो इनफैक्ट इट विल बी एडिंग अप to the chlorine ka dipole moment, and what we will see is that there is no net cancellation and the dipole moment is non-zero, and we will term CH3Cl molecule as polar in nature, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ molecules की practice करवाने वाला हूँ and I'm going to simply ask you whether they are polar or non-polar, but before I go in that direction, again at least ये 1 2 3 4 5 examples जो मैंने कराए हैं, इनमें कुछ डाउट है तो हम लोग अभी क्लैरिफाई कर लेते हैं, सो दैट वी आर नॉट इन फॉर एनी सरप्राइजेस गोइंग फॉरवर्ड। पूछ लो। हाँ, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है साईराम, लाइक तो साईराम का क्वेश्चन है दैट इफ देयर आर डिफरेंट टर्मिनल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल देन विल दे बी पोलर, ऐसा नेसेसरी नहीं है। It could happen that even with different terminal atoms, the vector sum can come out to be 0. I'll show some examples, and in which you will see that even with different terminal atoms, it could be a case that the molecule is non-polar. हाँ, multiple central atoms होंगे तो फिर like vector sum और difficult हो जाएगा करना, ठीक है। तो उसमें भी we will see कि if it is something that can be worked out। देखते हैं, मैं धीरे धीरे एग्जांपल्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाऊंगा। अभी ये सिंपल एग्जांपल्स में किसी को कुछ डाउट है, एनीथिंग यू वुड वांट टू आस्क एंड अंडरस्टैंड इन दीस सेट ऑफ एग्जांपल्स? ऑलराइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो ओके, SO3 के बारे में बताओ, पोलर है कि नॉन पोलर है, कैसा रहेगा? व्हाट इज योर गेस based on the Lewis structure, the shape of the molecule that you would know? हाँ, राइट केतन, हाँ correct. So yes, all of you are correct. The answer is non-polar. Reason being, when you plot the structure of SO3, it's a trigonal planar molecule, right? Individual bonds polar रहेंगे, S और O के बीच का बॉन्ड पोलर रहेगा,
बट अगेन एंड डायरेक्शन भी उसका O से S की तरफ होगा, नहीं S से O की तरफ होगा। क्या कर रहा है ये राउंड भी यार, S will be partial positive ना, इस तरीके से इनका डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। बट बिकॉज अगेन ये 120 डिग्री का एंगल रहेगा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल रहेगा, ये सब डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड आपका नेट आंसर आएगा 0। ओके, SO2, व्हाट अबाउट SO2? राइट हार्दिक, राइट आयुष, नहीं केतन आपका गलत है। नहीं साहिल, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा पोलर मॉलिक्यूल। कैसे, आप नोटिस करो SO2 का मॉलिक्यूल कैसा रहेगा, SO2 का मॉलिक्यूल will be a V-shaped molecule with a lone pair, right? तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन एटम्स हैं उनके साथ में डायपोल मोमेंट हो गया μ1, ठीक है। एंड जो लोन पेयर रहेगा, राइट, लोन पेयर के साथ में डायपोल मोमेंट कैसा रहेगा, it will be some other value, it will be some other value, say μ2. Now अब despite the directions being in such a manner that they are opposite to each other, but we cannot say na that μ1 and μ2 are going to cancel out each other, right? ये नीचे के दो जो μ1 है उनका नेट वेक्टर सम नीचे की तरफ कुछ आ रहा होगा, ठीक है, बट अब वो μ2 को थोड़ा ना एग्जैक्टली कैंसिल आउट कर देगा। So it is non-polar molecule and that is also what we experimentally validate also. So, हाँ, so it isn't possible by any means that mu1 and mu2 are equal, because is it possible, sir? I'm asking. it is, of course, mathematically speaking it is possible, but it is highly unlikely कि ऐसा हो, because हमने डायपोल मोमेंट कैलकुलेशन का फॉर्मूला सीखा है, right? It is dependent upon the charge and the distance, right? So now definitely because आपको values नहीं पता है mu1 mu2 का, आपको angle नहीं पता है, तो आप बोल सकते हो that it is possible, but in terms of possibility I would say yes, in terms of probability I would say it is highly unlikely that these two are going to cancel out. So what Sir, we would, it has been experimentally validated that mu1 and mu2 are not equal in any case. हाँ, so हम लोग जब SO2 का actual experimental calculation भी करते हैं, right, तो we find out that SO2 is a polar molecule and इसका कुछ dipole moment observe होता है। Okay, sir, got it. वैल्यू चाहिए तो वैल्यू भी मिल जाएगा 1.61 dpi. Not that you will have to remember, but yes, it is a polar molecule. All right. हाँ, CO2 के बारे में बताओ। सर हाँ बोलो सुमित। अगर मतलब एक लोन पेयर हो तो मतलब पक्का वो पोलर ही होगा ना? एक लोन पेयर हो तो पक्का पोलर होगा मतलब? सर लाइक अभी मतलब एक ऐसे लोन पेयर हो उसमें तो नहीं, न्यू ठीक ठीक ठीक, मैं समझ गया आपका थॉट प्रोसेस। देखो अब क्या हो रहा है ना सुमित, व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज यू आर ट्राइंग टू क्रिएट सम काइंड ऑफ पैटर्न, यू आर ट्राइंग टू क्रिएट सम काइंड ऑफ लॉजिक दैट इन फ्यूचर if this happens then I can conclude that, which is a good thing to try and test. However, what you are trying to do is in a sense create shortcut which is not going to be applicable if I change examples, ठीक है। so it's good कि you are trying to decipher a pattern, but ऐसा होगा नहीं। आपके लिए जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रहेगी, कोई मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर आइडेंटिफाई करना है, तो यू सिंपली ड्रॉ द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल and understand the individual dipole moments that are present around the central atom and then come up with your answer. Don't try to come up with shortcuts कि एक लोन पेयर होगा तो पोलर होगा, दो लोन पेयर होंगे तो नॉन पोलर होगा या कैसा,
ये सब शॉर्टकट्स वर्कआउट नहीं करेंगे, ठीक है। ओके सर। जैसे अभी थोड़ी देर पहले साई राम ने भी कुछ एक शॉर्टकट निकालने का सोचा था कि अगर लाइक अराउंड अ सेंट्रल एटम इफ देयर आर डिफरेंट टर्मिनल एटम्स देन इट मे बी पोलर और नॉन पोलर। नहीं, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसमें लाइक यू ट्राई टू यूज सच शॉर्टकट्स तो यू माइट कम अप विद द आंसर बट द एक्चुअल आंसर वुड बी डिफरेंट। आएंगे वो ऐसे टेस्ट में, आप लोगों को अपने आप समझ में आएंगे वैसे क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे, तो यू विल हैव टू बी like crystal clear in your approach that you'll have to draw the shape and then understand whether cancellations are happening or not, ठीक है। yes you can come up with a generalized answer जो हम देखेंगे आगे। symmetrical molecules रहेंगे तो symmetrical molecules में cancellations workout कर जाएंगे and as a result dipole moment zero आ जाएगा। non symmetrical cases में cancellations workout नहीं करेंगे and dipole moment आएगा, ठीक है। तो हाँ, राइट, यू गाइस आर करेक्ट इन टर्म्स ऑफ CO2। CO2 का you are right, it's a non-polar molecule, right? It's a symmetrical molecule with carbon oxygen का dipole moment on both the sides cancelling out each other, and there is no dipole moment associated with CO2. Correct. All right. Next example try करो, XeF4. What will be your answer? Good. So now that you understand the structure, यहाँ पर if you remember the structure of XeF4 तो कैसा था? It was square planar, right? Around the xenon there were 6 electron pair, 4 bond pair, 2 lone pair, right? और ये 2 lone pair equally opposite present होते थे and ये XeF4 का square planar molecule होता था, right? जो repulsions ऊपर से आ रहे होते थे वही repulsions नीचे से भी आ रहे होते थे and ये planar molecule होता था, right? यहाँ पे there is no action, no equatorial, this is octahedral, all positions are identical. तो इसमें you will find that the cancellations are going to happen, right? lone pair आपस में cancel out कर देंगे, bond pair आपस में cancel out कर देंगे and the dipole moment will be 0, ठीक है। all right, XeF2 कैसा रहेगा? what about XeF2? जल्दबाजी नहीं, आप आराम से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आंसर करो, मुझे जल्दी आंसर करने के ज्यादा मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। ये कैसा आंसर हुआ आयुष? मे भी पोलर और नॉन पोलर, लाइक 2 ही ऑप्शन है। अगेन मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट इन दिस केस, द आंसर इज अगेन नॉन पोलर, राइट? कैसे? आपने XeF2 के बारे में नोटिस किया, इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर रहेंगे और 2 लोन पेयर रहेंगे, राइट? सॉरी उल्टा बोल दिया, 2 बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर है। तो ये TPP ज्योमेट्री में अरेंज रहेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर एंड TPP ज्योमेट्री में F एक्सियल पोजीशन पे आ जाएंगे एंड ये इलेक्ट्रॉन पेयर आपके इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाएंगे, राइट? Now that they are present in the equatorial position, you can understand that again the repulsions will be like cancelling out each other, right? And as a result, this will be a symmetrical molecule only, right? This is a symmetrical molecule, and in this symmetrical molecule, the dipole moments are cancelling out. जो फ्लोरीन और xenon का dipole moment है वो cancel out हो जा रहा है because ये perfect 180 डिग्री के एंगल पर है, right? And ये जो lone pairs हैं ये भी like trigonal planar position पर है 120 डिग्री from each other, इनका भी dipole moment cancel out हो जाएगा, ठीक है? ये समझ में आया? All right. Now next, PCl3F2,
हाँ हाँ हर्ष, वी कैन। ऑलराइट, करेक्ट, इसका भी आंसर नॉन पोलर ही रहेगा। सो दोनों एक्चुअल पोजीशन पे फ्लोरीन रहेंगे, राइट, एंड तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्लोरीन रहेंगे, एंड अगेन द कैंसिलेशंस आर गोइंग टू वर्क आउट। ठीक है, व्हाट अबाउट PCl2F3? देखो अब यहाँ पे कैच आ गया, इसमें आधे बच्चे बोल रहे हैं पोलर है, आधे बच्चे बोल रहे हैं नॉन पोलर है, राइट। सो यहाँ पर व्हाट यू विल हैव इज अ केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। यहाँ पर आप नोटिस करोगे दैट फ्लोरीन एक्चुअल पोजीशन पे रहेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 3 फ्लोरीन है तो उनको इक्वेटोरियल पे डाल दिया, राइट। इन TBP more electronegative atoms are at axial position, right? So that is what is going to be here also. So ये 2 फ्लोरीन यहाँ पर ये एक्चुअल पोजीशन पे रहेंगे, राइट, एंड एज अ रिजल्ट अब यहाँ पर डायपोल मोमेंट्स का कैंसिलेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ, ये इसने फिर से डायरेक्शंस में गड़बड़ कर दिया है, फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव रहेगा। लेट मी रीड्रॉ। ठीक है, ये इस तरीके से रहेगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रहेगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रहेगा, राइट, एंड यहाँ पर भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। ये समझ में आया? ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हैं। बेंजीन का क्या रहेगा, ठीक है। आप थोड़ा सा, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल जहां पर देयर आर मोर देन वन सेंट्रल एटम। C6H6 बेंजीन, इस केस में क्या रहेगा? Correct. This will be non-polar in nature. Why? Because again, symmetrical structure रहेगा, ठीक है। यहाँ पर it's a multi-atom molecule, like multi-central molecule, but the fact is it's a planar structure, right? Planar structure में अब आप notice करोगे यहाँ पर इसका और इसका डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। इस कार्बन नाइट्रोजन का इस कार्बन नाइट्रोजन का डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा,
right? They will be equal and opposite to each other, so they will all cancel out. ठीक है. हाँ, ये समझ में आया? All right. Now, alkanes के बारे में, yes, generalized understanding will be alkanes are non-polar only. ठीक है, उसमें एक्चुअली कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स के बीच में पोलर नेचर नहीं रहता, एंड इवन कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड रहता है वो भी नॉन पोलर नेचर का रहता है. ठीक है, बट देन अगर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड से हाइड्रोकार्बन्स हैं तो उनमें लाइक यू कैन कम अक्रॉस डायपोल मोमेंट. ठीक है, all right. नेक्स्ट ऑब्जर्व करना, ठीक है, एक्चुअली let me draw it first up in front of you and then you can answer. ठीक है, अदरवाइज जो साथ में आंसर ही प्रेजेंट है एक्चुअली. सो यहाँ पर you have these 4 comparisons. ठीक है, सो ये बेंजीन का मॉलिक्यूल ही मैं ले रहा हूँ. ठीक है, बट बेंजीन के मॉलिक्यूल पे इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन आई एम पुटिंग सर्टेन अदर एटम्स, राइट. तो यहाँ पर आप नोटिस करना, ये 4 एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से हेक्सागन नहीं बन रहा है, बट यू कैन सी एंड देन आंसर दैट हाँ, which of these are polar and which of these are non-polar. Correct. ठीक है, most of you are able to now give a correct answer. The first 3 are going to be polar and the last one is going to be non-polar. Correct. ठीक है, so यहाँ पे नोटिस करना, ये जो पहला वाला एग्जाम्पल है उसको हम लोग क्लोरोबेंजीन बोलते हैं. एक मिनट. सो पहले वाले एग्जांपल को हम लोग क्लोरोबेंजीन बोलते हैं, wherein like on the benzene instead of a hydrogen there is a chlorine that is present, right. तो इसको क्लोरोबेंजीन बोलते हैं. और इसमें यहाँ पर क्या होगा, डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट नहीं होगा, so you will have a net dipole moment and this will be a polar molecule, right. यहाँ पर again जो डायपोल मोमेंट होगा वो कैंसिल आउट नहीं होगा, this will be polar. यहाँ पर भी जो डायपोल मोमेंट रहेगा वो कैंसिल आउट नहीं होगा. इसको हम लोग ऑर्थो बोलते हैं. लाइक दीज आर सम नोमेनक्लेचर्स. आप लोगों ने आईयूपीएससी में पढ़ा है ये अभी, ऑर्थो मेटा पैरा? अच्छा, तो इसमें यहाँ पर समझने की कोशिश करना दैट जैसे ये डाइक्लोरोबेंजीन कंपाउंड है. ठीक है, डाइक्लोरोबेंजीन
मतलब C6H6 था, बट H6 में से 2 H हटा दिए और उसकी जगह 2 क्लोरीन लगा दिए, तो ये तो हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। बट अब ये 2 क्लोरीन अलग अलग जगह पे प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट, एंड दिस विल रिजल्ट इन डिफरेंट arrangement of atoms but same molecular formula, so we call them as isomers. So these are the 3 isomers that are possible, right. क्लोरीन दोनों adjacent position पे है तो उसको ऑर्थो बोलते हैं, क्लोरीन ऐसे next to adjacent position पे है तो उसको मेटा बोलते हैं, एंड दोनों क्लोरीन एकदम ऑपोजिट है एक दूसरे के तो उसको हम पैरा बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्थो मेटा पैरा, these are some quite commonly used prefix when describing such benzene derivatives like benzene से बने हुए compounds, ठीक है। सो अगर यहाँ पर इंस्टेड ऑफ क्लोरीन कुछ और भी कंपाउंड लगा दिया गया होता तो उसके भी पोजीशन इसी तरीके से ऑर्थो मेटा पैरा करके कॉमनली डिफाइन करी जाती है, ठीक है। जस्ट नोमेनक्लेचर है। हाँ, तो जनरलाइजेशन यही आ रहा है हर्ष यहाँ पे, symmetrical molecules are going to be non-polar in nature and non-symmetrical molecules are going to be polar in nature. That is the generalization which is coming out. ठीक है, all right. थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं। So अच्छा, ठीक है, C2H4 कैसा रहेगा एंड C3H4, राइट। C3H4 में दिस इज लाइक एलीन, 2 डबल बॉन्ड एडजेसेंट रहेंगे, उनके लिए आपको बोला जा रहा है, लाइक ये एलीन वर्ड आपने सुना है ना IUPAC नोमेनक्लेचर में? नहीं, अच्छा, मतलब ऐसे like it is C3H4 के again multiple isomers possible है, so this is the one which I am talking about. इन दोनों के बारे में बताओ, पोलर है नॉन पोलर है? ठीक है, this is the one which I am talking about. All right, the correct answer is that both are non-polar. कैसे? आप notice करो, in C2H4 again, even if you consider carbon hydrogen polarity, वैसे तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच का इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस कम है, बट क्योंकि यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है, ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा रहती है, तो यहाँ पर अगर हम इवन इफ वी आर कंसिडरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो भी यहाँ पर कैंसिलेशंस होंगे एंड ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट C3H4 आल्सो, लाइक ये जो एलिन वाला स्ट्रक्चर है, राइट, इसमें भी आप नोटिस करोगे तो किस तरीके से यहाँ पर, वैसे तो ये नॉन प्लेनर है, ठीक है, इसके बारे में बात करूंगा तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल था, ठीक है। इसके बारे में बात करूंगा तो ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल था। डू यू रिमेम्बर ये नॉन प्लेनर कैसा था? रेफर हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। तो इवन इफ दिस इज नॉन सिमेट्रिकल, ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस करना, इवन इफ दिस इज नॉन सिमेट्रिकल, यहाँ पर ये हाइड्रोजन इस पेपर के प्लेन में है, लाइक ऊपर नीचे है, एंड एक हाइड्रोजन इधर राइट हैंड साइड पे बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, राइट। सो इफ आई
take this to be the z axis, this to be the x axis and this to be the y axis. तो you can say that ये xz plane में है and ये दोनों yz plane में है. ठीक है. नहीं तो मैं थोड़ी ना बार बार आके बताऊंगा भाई कि किस पर्सपेक्टिव से देखो. लाइक वो तो आप ही को आइडेंटिफाई करना है ना. मैं तो सिर्फ ये मॉलिक्यूल लिख के दे दूंगा कि ये C2 C3H4 लाइक दिस CH2 CH2, इसका आपको बताना है नेचर कैसा है. तो अगेन यहाँ पर you will have to draw the structure and understand. So despite the fact that this is non-symmetrical, non-planar, it comes out to be non-polar only. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो एंगल्स रहेंगे 120 डिग्री के, राइट, इसका डायपोल मोमेंट भी नेट z एक्सिस के अलोंग रहेगा और इसका डायपोल मोमेंट भी नेट z एक्सिस के अलोंग रहेगा. ये कैंसिल आउट कर देंगे. ठीक है. हाँ बोलो समर्थ. तुमने हैंड रेज किया हुआ है समर्थ. आर यू देयर इन द क्लास? अच्छा ठीक है. हाँ यहाँ पे देखो C2H4 तो समझ में आया ना. C2H4 में तो कैसा है, ये हाइड्रोजन ये सब प्लेनर है, लाइक एक ही प्लेन में. तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैंसिल आउट कर रहा है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैंसिल आउट कर रहा है. यहाँ पर डिस्पाइट द फैक्ट ये सेम प्लेन में नहीं है, अगर मैं इन दोनों का नेट डायपोल मोमेंट आपको निकालने के लिए बोलूंगा तो वो कैसा रहेगा? इट विल बी अलोंग द z एक्सिस, राइट. द नेट डायपोल मोमेंट विल बी समथिंग इन दिस मैनर ओनली, है ना. इन दोनों का नेट अगर मैं करने के लिए बोलूंगा आपको, right, it will be something in this manner only. And even if these two hydrogens also, right, they are also not in the same plane as xz, ये yz plane में, इनका भी मैं नेट आपको निकालने के लिए बोलूंगा तो it will be also along z axis only, right, and ये कैंसिल आउट कर रहे होंगे. ठीक है. All right. What about this case? CH3C triple bond C CH3. Correct. This will be again non-polar in nature. इसमें like the role of symmetry will be there. Like you can see कि like this CH3 and this CH3, right? इनका जो नेट डायपोल मोमेंट रहेगा, ठीक है, वो आपस में अगेन कैंसिल आउट ही कर देगा. ठीक है. तो ये नॉन पोलर नेचर का रहेगा. ठीक है. अब लेट मी स्टॉप द स्क्रीन शेयर. मेरे को एक बार आंसर रिमूव कर लेने दो, क्योंकि मैं आंसर अगर दिखा दूंगा तो फिर तो मजा ही आ रहेगा. लेट मी remove the answer, and this is going to be now interesting. Okay, so you have these 5 examples in front of you. ठीक है. बेंजीन के डेरिवेटिव्स, इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर CN प्रेजेंट है, NO2 OH NH2 ये सब प्रेजेंट है. Now given this structure, given this piece of information that you have, which amongst these are polar and which amongst these are non-polar? ठीक है. And all are non-polar is not the correct answer.
ये मैं पहले आपको बता देता हूँ फॉर अ हेल्पफुल हिंट. All are non-polar is an incorrect answer. Here some are polar, some are non-polar. तो थोड़ा सोचो, फिगर आउट करो एंड आंसर देने की कोशिश करो. कुछ पोलर है, कुछ नॉन पोलर है. अगर ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है तो चलो गेस वर्क ही कर लो. देख लेते हैं आज आपका लक कैसा चल रहा है. हाउ मच वेल यू आर एबल टू गेस. अगर लक अच्छा चल रहा है तो फिर आज ऑनलाइन पोकर या ऑनलाइन तीन पत्ती खेल लेना, कुछ पैसे कमा लेना. हाँ देखो, गैस बोलते तो क्या फटाफट गैस करना शुरू कर दिया. हाँ, मतलब कोई दिमाग लगाने का पॉइंट ही नहीं है. हाँ हाँ, गैस करना है ना, हमारा क्या जा रहा है, कौन सा टैक्स भरना है गैस करने में. बिंदास गैस करेंगे. मैंने पूछा है कौन सा पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है. यही पूछ रहा हूँ यार, पिछले 1 घंटे से मैं यही पूछ रहा हूँ प्रथमेश. मतलब हाउ कैन यू से, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन. मैं पिछले 1 घंटे से सेम ही क्वेश्चन डिस्कस करे जा रहा हूँ. ऑल राइट. देखो एक साथ आंसर दो तुम, ऐसे मत करो मतलब ब्रेक ब्रेक करके, क्योंकि मल्टीपल चैट्स में फिर वो ब्रेक डाउन हो जाता है. तो हम लोग चेक करेंगे आज कौन है बादशाह, किसकी किस्मत का चक्कर चल रहा है आज. सो गिव योर आंसर इन अ सिंगुलर लाइन. अच्छा शुभम लाइफलाइन मांग रहा है. सर गिव अ हिंट, कितने पोलर कितने नॉन पोलर. अच्छा. अच्छा चलो, मैं थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूँ. इसमें 3 नॉन पोलर है और 2 पोलर है. नहीं सॉरी, उल्टा बोल दिया. 2 पोलर है और 3 नॉन पोलर है. ठीक है. 3 आर पोलर एंड 2 आर नॉन पोलर. चलो इतना बड़ा हिंट दे दिया है मैंने, तो अब गेस वर्क कैसा है. चलो नाउ इट्स टाइम टू चेक आज का बादशाह कौन. ए इज नॉन पोलर. बी, सॉरी उल्टा. हाँ अरे सॉरी, मैंने इनफैक्ट उल्टा ही बोल दिया यार. बार बार मैं गड़बड़ी कर रहा हूँ. 2 नॉन पोलर है और 3, सॉरी 2 पोलर है और 3 नॉन पोलर. मैं इतना पोलर नॉन पोलर बोल के ना मेरे दिमाग में कंफ्यूजन हो गया है. लाइक आई एम माई सेल्फ फंबलिंग सो मच. 2 पोलर 3 नॉन पोलर. सो ओके, ए नॉन पोलर है, बी नॉन पोलर है.
देन C भी नॉन पोलर है, D and E are polar. All right. कोई है आज का जिसके पांचों गैस करेक्ट हो गया हो? Anyone? साहिल इज सेइंग कि उसके सारे आंसर उल्टे हैं। यश तुम कह रहे हो तुम्हारे पांचों करेक्ट है, देखें तुम्हारा आंसर। अच्छा सॉरी, ए बी सी और डी और ई है, मैंने ई और एफ क्यों लिख दिया यार, डी और ई। देखें यश का आंसर्स। अच्छा हिंट के बाद करेक्शन किया है तुमने, चलो ठीक है, हिंट तो दिया इसीलिए था मैंने। चार किस किस के करेक्ट है? चलो चार करेक्ट है तब भी मतलब ठीक है। प्रथमेश तुम्हारे भी सारे करेक्ट हैं, कैसे? हिंट देने के पहले या हिंट देने के बाद में? तुम बीच में तो मुझसे यही पूछ रहे हो ये क्वेश्चन क्या है। ऑल राइट। अच्छा हु इज द मोस्ट अनलकी, जिसके सारे ही गलत है? एक तो ये साहिल है, और कोई है जिसके सारे गलत थे? ऑल राइट, चलो ठीक है। तो आप लोग दिमाग लगाओ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं दैट व्हाई दीज आंसर्स आर व्हाई दे आर। ठीक है, आई नॉट एक्सटेंड द क्लास, आप लोगों का 7 बजे से नेक्स्ट क्लास है, मेरा भी 7 बजे से नेक्स्ट क्लास है, सो we'll resume from here only and then we'll discuss. हाँ right, so correct, I'll give that hint also. केदार ने दिया है सबके लिए हिंट, हिंट इज इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, देखो एंड देन विल डिस्कस। चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज एग्जाम, एटलीस्ट जो बच्चे दे पा रहे हैं उनके लिए। जो नहीं दे पा रहे हैं तो डोंट बी वरीड अबाउट इट, बाद में देख लेना। ऐसे बड़े बड़े कोर्सेज में छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। चलो टेक केयर गाइस, गुड नाइट।